Good afternoon, dear students, and today we are going to discuss third part of your that English from class 10th, the last lesson of the afternoon, written by D.H. Lawrence, and we have already discussed this poem in two parts, in two videos, and today we will discuss its important points, which are important as taking in consideration your examination from examination point of view. Today's video is very important. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समरी को थोड़ा रिवाइज करेंगे कि यहाँ पर समरी में क्या लिखा गया है. द लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून इन द पोएम इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस, राइट. His main theme is about the end of poet's teaching career when the frustration of the work has gotten to him, right. The poem is written through the eyes of a teacher. So this poem is written through the eyes of a teacher, not as a poet, but he had written this poem as a teacher. But it shows a negative, but as we already discussed that it's pessimistic view of the teacher. It shows negative approach of the students as well as of the teacher. The poet begins his poem with by yawning for the conclusion of the lesson, that is because his learners are uncontrolled, had become uncontrolled. They are not obeying all his orders, and they are not they are not interested to learn, they are not interested in their studies, and they had shown very slowly work done by them, that homework done by them, and he feels it's insult to me. For teacher, the learner should be the hunting dogs and which searches for its prey with great excitement. तो टीचर हियर एक्सपेक्ट कि उसके बच्चे जो हैं हंटिंग डॉग की तरह होने चाहिए, जो अपने शिकार पे कूद पड़े, यानी अपनी जो नॉलेज है उसकी तरफ बढ़े. बट हियर द सिचुएशन इज टोटली different. But Lawrence says his learners have lost their zest for hunting, so they have to be pulled and coaxed, but no longer hunt for natural desire. His learners also make two horrible mistakes that he cannot bear, so he became very angry of them. Although he has dedicated his life to enable his learners to learn, they not only do not utilize their opportunity, but on the contrary reject the teacher's effort, are insulting and makes the poet angry indeed, right. And the poet's decision is essentially to stop wasting his time. So he thinks it's wasting time to teach them these people, these he compared them with hounds, unruled hounds, uncontrolled hunting dogs, attempting to teach learners who have no desire to learn and certainly to be at school. They will receive much of an education and then they will go out. So they has no need to be able to write a description of dog or to write anything at all. As a result, he becomes so angry from the educational system which tells him he must give extreme attention to his learners. तो वो अपने सिस्टम से भी बड़ा दुखी है कि क्योंकि ये बोलता है कि आई एम एक्सपेक्टेड टू टीच देम, आई एम एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ देम. तो उससे भी दुखी है कि मुझे क्यों बोला गया है कि इनका ख्याल रखना, इनका जो कि अनरूल्ड हाउंड्स हैं. At last, he decided not to tire himself of teaching them or tire themselves, but learning. Instead, he will leave them to their devices and wait for the bell. और आखिरकार वो डिसाइड कर लेता है कि मैं अपनी मेहनत भी ज़ाया नहीं करूँगा और इनको भी इनको भी नहीं करने दूँगा. और अब वो वेट कर रहा है कि बेल कब रिंग होगी और दोनों की एगनी जो है ख़त्म हो जाएगी. The poet does not simply set out to look at the relationship between teacher and pupil, but to express a frame of mind. तो यहाँ तक इसकी समरी आ जाती है. यहाँ से थोड़ा आगे हम इसको अगर एनालाइज और करें तो relationship between the teacher and the pupil, but to express a frame of mind extremely anxiety. That is, the poem is written towards the end of poet's teaching career when the frustration of the work has gotten to him. Accordingly, he expresses his anger at the British educational system, which instructs that he treat all learners like little roses to be cultivated. तो वो अपने पूरे एजुकेशनल सिस्टम जो ब्रिटेन का है उससे बड़ा तंग है, क्योंकि वो बोलता है कि सभी लर्नर्स जो हैं उनको लाइक ट्रीटमेंट करना, मतलब एक जैसा जो है बर्ताव करना, एक जैसा उनको उनके लिए
पढ़ाई कराना, एजुकेशन स्टडीज़ उनको देना, ये पॉसिबल नहीं. वेयर्स मोस्ट ऑफ देम आर इन फैक्ट नॉट इन ऑल but singing nettles. At last lesson of the afternoon expresses a good mood of bitter desperation of thanklessness of English teacher's work and details his thought. तो यहाँ पर हम बहुत सारी वजह भी बोल सकते हैं कि अगर वो सिस्टम से नाराज़ है तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है वहाँ कि हम जो बच्चे की जो डिमांड्स हैं, बच्चे की जो माइंड सेटअप है उसको कैटर कर पाए. तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी आपकी बुक में दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट, जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. व्हाट इज़ द टोन इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम. ओपनिंग लाइन ऑफ पोएम में कौन सी टोन है. द पोएम इन द ओपनिंग लाइन contain a tone of bitter desperation and disappointment at the thanklessness of a teacher's work. क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम. अब कौन है इसका स्पीकर. द पोइट हु आल्सो हैपन टू ए टीचर इज द स्पीकर ऑफ द पोएम. ये पोइट है जो कि टीचर भी है, लॉरेंस, D.H. लॉरेंस. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द प्यूपल्स रिगार्डेड एज. उनको क्या, किसके साथ उनको कंपेयर किया गया है. वाई वाज द टीचर फेल टू हाउल देम एंड अर्ज देम. यानी ये टीचर जो क्यों फेल हो गया उनको अर्ज करने में, उनको फोर्स करने में, पढ़ाई के लिए मजबूर करने में क्यों फेल हो गया. द पीपल्स आर रिगार्डेड एज अनकंट्रोल्ड हंटिंग डॉग्स, अनरूली हाउंड्स. द टीचर हैज़ फेल्ड टू हाउल देम और अर्ज देम एनी मोर बिकॉज द पीपल्स हैव नो इंटरेस्ट इन लर्निंग. तो वन कैन टेक अ हॉर्स टू द रिवर बट 20 कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक. एक आदमी जो है दरिया के पास हम घोड़े को ले सकते हैं, एक आदमी भी, लेकिन अगर हम 20 आदमी भी जमा हो जाए, अगर घोड़े को मर्जी नहीं है पानी पीने की, तो वो दरिया से पानी नहीं पिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 है विच वर्ड्स इन आर फ्रेजेज इन स्टेंजा 2 कन्वेड द मूड ऑफ द स्पीकर. अब स्टेंजा 2 में क्या मूड है स्पीकर. द स्पीकर इज फीलिंग मोर एंग्री. तो पहले जो बिटर उसकी शुरुआत होती है, अब ये बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा गुस्सा होता है और एंड तक वो गुस्से में ही, जब तक ना बोलता है कि वो बेल का इंतज़ार कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो गुस्से में ही पूरे पोएम में रहता है. क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डज नॉट द स्पीकर वांट टू कंज्यूम हिज फ्यूल एनी मोर. द स्पीकर डज नॉट वांट टू वेस्ट द लास्ट डियर फ्यूल ऑफ हिज लाइफ एनी मोर बिकॉज ही फील्स दैट इट इज़ मियर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू टीच नॉलेज टू द स्टूडेंट्स हु हैड टू चेज नॉलेज. उसको लगता है कि ऐसे बच्चों को जिनको पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उनके सामने पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है. वाई डू यू थिंक टेक द टोल ऑफ दियर पनिशमेंट मीन्स, इसका मतलब क्या हो सकता है. टेक द टोल ऑफ दियर पनिशमेंट, दिस मीन्स दैट ही इज संक टू द वेरी लोवेस्ट पॉइंट ऑफ हिज लाइफ एंड कैन नॉट सिंक एनी फर्दर. तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत डूबा हुआ हूँ, यानी मैं इतना इंसल्ट अपने आप को फील कर रहा है, तो बोल रहा है कि मैं और ज़्यादा इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता. ही हैज़ अटेम्प्टेड हिज लेवल बेस्ट टू माउट द स्टूडेंट्स बट इन टर्न ही डज नॉट गेन एनी पॉजिटिव रिजल्ट्स. तो उसने बड़ी कोशिश की है कि माउट करे बच्चों को, लेकिन उसको कोई वहाँ पे रिजल्ट नहीं निकलता. क्वेश्चन नंबर 7 है वाई डज द टीचर फील दैट हिज टीचिंग एंड द पीपल्स लर्निंग आर बोथ पर्पसलेस. तो यहाँ पर बोलता है कि मेरी टीचिंग और इनकी लर्निंग जो बड़ी पर्पसलेस है, बिल्कुल पर्पसलेस है, बेमायने है. क्यों बोलता है. तो द टीचर फील्स दैट द टीचिंग एंड द पीपल्स लर्निंग आर बोथ पर्पसलेस बिकॉज इन स्पाइट ऑफ हार्ड एफर्ट्स टू टीच. तो यहाँ पर फिर ये बोलता है टीच नॉलेज टू द स्टूडेंट्स ही हैज़ फेल्ड टू ऑब्टेन एनी पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम देम. तो यहाँ पर बोलता है वो एक स्टेंजा में क्या बोलता है वर्सेस में, आई विल नॉट यानी रिपीट करता है कि मैं नहीं करूँगा, फिर फैसला कर दे आई विल नॉट वेस्ट माई सोल. मैं अपनी रूह को ज़ाया नहीं करूँगा, यानी मैं अपने आप को और नीचे नहीं गिराऊँगा. क्वेश्चन नंबर 8 है डू यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम. देयर इज़ अ वेल नीट कनेक्शन बिटवीन द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम. इन द बिगिनिंग टीचर हैज़ बीन शोन अ pessimistic who does not want to teach his student because they are unwilling to learn, but in the middle he becomes a little optimistic, he want to utilize his energy to teach them, but again at the end, क्योंकि एक जगह पे वो बोलता है कि आई एम सपोज टू डू, तो वो वहाँ पे कोशिश करता है लेकिन फिर फेल हो जाता है. बट अगेन एट द एंड ही गेट्स नेगेटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम देम, बिकम्स पेसिमिस्टिक अगेन. तो
बिगिनिंग में भी पेसिमिस्टिक है और एंड में भी पेसिमिस्टिक रहता है. हिज फाइनल रिजॉल्व इज टू सिट टू आउट वेट फॉर द बेल. क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया है इसमें. व्हाट इज द मेटाफॉर यूज्ड इन द पोइट इन स्टैंजा 1 में कौन सा मेटाफॉर यूज हुआ है. तो बार बार हमने बोला कि जो है अनरूली हाउंड्स. द पोइट यूजेस मेटाफॉर ऑफ पेक ऑफ हाउंड्स, हिज पीपल tagged at their lashes and straining. He also utilized metaphor by using words expressed such as quarry. Quarry means fray of knowledge, quarry of knowledge. They hate to hunt. Question number: identify the metaphor in stanza 3. The poet used the metaphor in the of the last dear fuel of life. Last dear fuel of life. It means his energy and what is left to him ऑफ हिज लाइफ. इसको कंपेयर करता है अपनी एनर्जी के साथ. एंड टोल्ड द इंसल्ट्स देयर सलामली वर्क एज पनिशमेंट्स. एलिट्रेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हैं. मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा आपको आपके दिमाग पे और बोझ डालने की ज़रूरत है. हमने जो पीछे 2 वीडियोस में डिस्कस किए हैं पोएटिक डिवाइसेस, मुझे लगता है कि अगर आप उनको फोकस करेंगे तो आपके पोएटिक डिवाइसेस निकल जाएंगे. राइट. तो थैंक यू वंस अगेन फॉर स्टेइंग विद अस, watching this video. Subscribe, like and comment on this if you like it. Thank you.